This conference will now be recorded. Hello guys, very warm welcome to all. Hello guys, am I audible? A very warm welcome. Shall we start it or we will wait? Guys, shall we start it or we will wait? Please respond it, anyone of? Am I audible? Guys, am I audible or not? Please let me know. Yes, sir, you are audible, sir. Okay, thank you so much. क्या हम शुरुआत करें, start करें? Shall we start? Or we will wait? सर वेट कर लेते हैं सर 2 मिनट. ठीक है, एक्चुअली टाइम ऊपर होता जा रहा है. We have the limited time, so that's why. Okay, we will wait 1 and 2 minutes. Let's see. Shall we start? Now we have already 5 minutes more. Please guys responded. At least one of the person responds me. Starts.
Okay. Thank you. Guys, today we are discuss over here some top libraries of the Python. Before we started these discussion, the libraries with some practical work on the library, some handling with the data set. So first, I want to tell you what is Python because सबने Python, R programming, SQL ये सब सुनी हुई है. So uh, Python is a very demanding language nowadays. If you have the skill set of some analytical applications, analytical tools, then definitely the percentage of selection in the hiring for any organization in the analytical department, even for the if you want to planning to for the startup, you can also can use the Python, which has no cost. It is totally a free of cost to me. You don't need any license something, and this is the open source for the unlimited time period. You don't need to worried about it. Okay, I have the some limited time and all these things. After that, my tool will expire. Or no, it is nothing like that. It is a open source tool with the lots of statistical analysis, visualization, data interpretation, data manipulation, lots of things. So Python is a general English language, which is a interpreted, object-oriented, and high-level program. So everyone knows the first time Python was introduced in 1991 by Guido van Rossum. He is the uh, he's just like a founder of Python. It is very strong language with the code reliability, simplicity, so that we can create or develop an application very rapidly. So it is a support dynamic data type, independent platform, simple and easy grammar. Lots of things have the quality for the Python. So what is Python? Python is general purpose with a high level and programming language. OOPS concept language based on the classes, objects, where we communicate, exchange message, processing data. Easy and clean to learn syntax, free open source. It can work any platform, Unix, Windows, Macs, anything as they can work it. Evenly, Python is the most popular programming language. It is used for the web development, software development, mathematics, scripting, analytics, statistics, visualization, lots of the applications there. But next question is generate what Python can do. The main question is come over here. So Python can use on server to create a web applications, even the use to alongside software to create workflow, database system connect easily to read and modify files, lots of things to handle the big data, even the complex mathematics also with the statistics, because I already told you statistics is a branch of mathematics. So simply it can also handle with the complex mathematics, or Python is a nothing a software development. Lots of application is there in the Python. As you see in my slides, Python and R are most popular programming language for data science and are often found opposite to each other in the room of debate on the fact that which one is more valuable. However, both the language has their specialized features. अब यहाँ पर मैंने पाइथन नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर पाइथन एंड आर लिखा है बिकॉज दीज बोथ लैंग्वेजेस आर इन वेरी इन डिमांडिंग. इफ यू हैव दीज बोथ स्किल सेट, then no one can stop you. No one, even the no one. I already used the word no one. You will not restrict on any one tool. You have to learn to more and more tool. In the end of the session, I take your opinion. If you want to learn R from my side, then I definitely guide you some last 15 minutes in each and every section about the R also.
so that you have learned both the language with the Python and R. So it's very simple syntax, simplicity syntax, simple syntax. I already told many times keep a very simple syntaxes in both the language, not the Python, even the R also. R is the complete statistical tool. Python is a general programming language tool. Some of the important libraries, scikit-learn, NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib, TensorFlow, all these libraries. Today we are here to discuss about the some libraries and work some basic concept of the sorry on the data set. So one of the renowned organization is using both R and Python. In the first session I already told you, man, this is the only tool. This is the only tool. The the startup organization in India increasing even day by day. So you don't need to worried about it कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, या जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना. ये सारे टूल आपके लिए फ्री एप्लीकेशन का काम करेंगे. आप इनमें इसको किसी भी लेवल पे यूज कर सकते हो. आप इससे अपनी सारी इंफॉर्मेशन स्क्रैप्स कर सकते हो, डेटा हैंडलिंग कर सकते हो, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो जो उसकी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए टू टेक अ प्रॉपर लाइसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट. अब इसमें कंपनी कौन सी है? मोजिला, यूट्यूब, गूगल, ड्रॉपबॉक्स, इवन द ई एक्सेल, आपने सुना होगा ई एक्सेल, इन्फोसिस, ये पहले सब सैस पे काम करती थी, बट सैस इज अ कमर्शियल टूल. इट इज अ वेरी हाई कॉस्टिंग टूल. तो अब जिन जिन कंपनियां पे ऑलरेडी लाइसेंस चल रहा है और लिमिटेड पीसीस के लिए, वही इसको यूज कर पा रही हैं. बाकी सब मूव करती चल रही हैं, सब पाइथन और आर पे आ रही हैं. सब all Infosys, SAS, EY, Deloitte. Even Deloitte is the most booming company in Python using Python. KPMG, even शायद से नाम तो मुझे भी नहीं पता, but 90%, more than 90% नहीं है, ये 100% है, more than 100% using Python. तो you imagine that कि ये किस लेवल पे, किस स्केल पे यूज हो रही है पाइथन and R. Installation, you are aware with all these things. Why Python only? The one of the major question is overcome here. Why Python? Because Python is with the different platforms, is a simply syntax, is allow developer to write programs in a few line codes. अब Java में जितने लंबे लंबे कोड्स होते हैं, they can solve in Python within a single line syntax also. ठीक है, interpreter system, meaning to execute code, object oriented, many things are there. That's why these are the Python requiring. Another question is that Python compared to the other programming language, even the Python designed for readability had some similarity with the English language and the mathematics. Every tool is not able to solve the mathematics. Few lines command as compared to other programming. Parathesis is also using in this with the other tools also. Reliable for the indentations, spaces, loops, function, classes, brackets. These are the used for this. In after this, I want to tell you some history of the Python. I know this will be no useful information, but you must be know about from the history about the Python. I already told you it developed. It started from developing 1980s, but it finalized in 1991 in the National Research Institute of Mathematics and Computer Science. It almost released finally in 1991. It's handling classes, list, string, lambda, map function, filtration, reduce. Even the reduce function is also used in the JavaScript. Anything else. Now the latest version is going in the 3.7 is going on. The most important features. I'm just telling about the Python only. I'm not just telling about the quality. I'm just telling the quality of the Python.
and nothing more than this. Its important feature is that easy to learn, expressive language, interpreted, cross-platform language, free and open source, object-oriented language, extensible, large standard libraries. The most important part is the libraries. So uh, there is a lots of libraries, you can handle it very easily. Mm, uh, the Python libraries display the wider role in machine learning AI. What are those libraries who plays the vital role in machine learning and AI? First libraries is come the pandas, insert and deleting columns, merging and join data sets, reshaping, pivoting, aligning data, dealing, manipulating data. Because if you have not arranged your data according to you, according to your requirement, there is then you face a lots of challenges. Suppose if we have the data 20 columns and you need only 10 columns, then how uh, you can create a data frame. Everyone aware about the term of the data frame. Data frame is nothing, it is the subset of main data or population. I already told you. Is am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. Evenly data frame. I already told you data is also whole data set is known by the name of population. So data frame, today I show you how we can create a data frame. Data frame is nothing, it is the subset of main population or main data set. It's read any file. There are lots of formats of the file like CSV, SV, TXT, arranging the data in order, ascending, descending, manipulating the data, even the correlate the columns. It also help us to correlating the column, cleaned and transform data in other files or some database. It can also calculate the average, mean, mode, minimum, first quartile. I already told you the 5 number summary. One question I already asked you, what is the best representation of the 5 number summary is the box plot. What is box plot? Which divide into the 5 parts: minimum, first quartile, median, third quartile, and maximum. So it will show you. And what is the best procedure to find the outliers which behave abnormally as compared to the other observation in particular data set, in particular column. So one of the most important term is come over here is the univariate. Anyone can ask you uh, what is the best representation of the univariate. So your answer simply a box plot will representation is good. Box plot or histogram or bar plots. This is the best representation. Evenly the pie chart is also the best. Univariate means that take out the information of a single variable, and the bivariate is the multiple or two variables that represented by the scatter plot. So these are the best representation of that. It also can visualize. So this is the quality of the pandas. So next library is the array NumPy. You already aware with the NumPy is a array. It is the numerical Python, just like a multi-dimensional arrays, objects, collecting or processing those arrays. Even the mathematical and logical operations is also performed in this. So this is also the very useful. Even it can explain very easily with the better understanding. Checking arrays, basic arrays, array indexing, array creation, indexing and slicing, high dimensional array, advanced methods of an array. So these are the qualities of an NumPy. It is also play the very vital role in the handling of the huge volume amount of data. So uh, these starting two libraries, pandas and numpy,
very important. Even there, you are aware that NumPy is created in 2005 by Travis Oliphant. It is very useful. It is a totally depend on the numerical Python. NumPy stands for the numerical Python. So if somebody asks you why NumPy only, so because it is the 50x faster than the other Python list. It can be the other Python list. It can frequently use in the with the high speed in data science. It it is very fast. It can manipulate very efficiently even also. It required the very less memories. Now the another libraries come over here is the matplot. It is also the today I discuss only the important libraries. There are lots of libraries in the Python, but one of the most important libraries is 7 to 8, which come everywhere when you are trying to work on a simply a practice on the data set, because you need a lots of practice for the basic, then you can move on the advanced. Otherwise lots of challenges, you can easily understand it. I'm not here to creating a coders. I'm just here to tell you the business scenarios, to understanding the business, to understanding the data, what basic information we can capture from here. That's why I am here. I know you are more good coder than me. Evenly for you, 12th class or students are the school students are the are a best coder right now, because they know about the coding, but they don't have any objective what they are trying to predict. Out of many, only some knows, few know, not the some, few knows what they are trying to do with that coding. So Matplot is one of that important libraries serve of the data visualization. Keep remember this. In the first class, I already told you, we are not here to show the coding or what is going on in the background to our target audience. We are here to show the visualization so that everyone can understand it. अगर मैं किसी को कुछ और समझा मैं यही रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको बैकग्राउंड में जो मैंने उसके अंदर फीचर्स या उसके अंदर जो मैंने कोडिंग या कोई मैंने उसका टेक्नोलॉजी अप्लाई करी है, अगर मैं अपनी टारगेट ऑडियंस को समझाऊंगा तो 5 to 6% ही समझ पाएंगे, रिमेनिंग 94% नहीं समझ पाएंगे. तो जहां पर आके वो चैलेंज हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए इवनली, और उसका रिजल्ट क्या होगा, वो एडवर्स हो जाएगा. एडवर्स इन नॉट दैट वे कि वो रिजल्ट फिर हो जाएगा, एडवर्स इन दैट वे कि उसको वो चीज के लिए जो हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो उसको बाउंस कर जाएगी, और जब बाउंस कर जाएगी तो इज रियली वेरी डिफिकल्ट कि हम उसको समझा पाए. जैसे हमारा मैट प्लॉट है, तो एक मैट लैब भी एक टूल होता है जो भी उसके अंदर यूज हो सकता है, वो भी एक रिप्रेजेंटेशन स्टैटिस्टिकल टूल है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, लाइन प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, बार, पाई चार्ट, और these are used in the matplot. These are the important parts of these things, so we have to uh, uh, aware all these things with the matplot. So another library is SciPy, Python scipy-learn. So it is also the open source library for the engineering and the mathematics functions. I already told you in the first point, is basically a library with have the Python, NumPy, and the mathematical algorithm as its building blocks. It is used for the great extent field of scientific concept and processing. So you are know with the scientific concept. What we are talking about the scientific concept is the statistical and the algorithm we are talking about. The linear algebra, working with the polynomial integration, Fourier transformations, all these things, interpolation, spatial function, all these things is handled in this scipy-learn. This is also the good for the mathematical part and all these things. Now the another library is for the Seaborn. Seaborn is also the graphical representation. It is also the data visualization.
just like a matplot, it is the advanced part of the matplot is the Seaborn. I will show you some plotting today session, the end of the session, last half an hour or 40 minutes. I will show you something. What is the difference between matplot and Seaborn? Its representation is very good. I will show you some plotting. I already show into the slide also, but directly I will show you in the Jupyter also. It is the data understanding, data exploration. एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म आता है ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसको हर कंपनी इंटरव्यू में आपसे पूछेगी कि व्हाट आर द स्टेप्स टू परफॉर्म द ईडीए में। जो प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे आपको ईडीए पे ही मिलेंगे पहले फ्रॉम दी स्टार्टिंग। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि डायरेक्टली कोई आपको एआई कराएगा, बिल्कुल कराएगा, वो भी कराएगा, लेकिन पहले वो आपकी एक स्किल सेट देखेगा। आर यू क्लियर कंसेप्ट्स विद दिस टर्मिनोलॉजीज कि हम कैसे परफॉर्म करते हैं उन चीजों को, कैसे क्या करते हैं। आई विल शो यू द लीनियर रेग्रेशन प्लॉटिंग ऑल्सो, कि हम रेग्रेशन में प्रिडिक्शन कर रहे हैं, प्रिडिक्शन हमारा कैसे आ रहा है। तो ये सारी चीज हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, ठीक है। और इसके बाद फिर जो हमारा एक डेटा होता है, डेटा पे हमारी कैसी अप्रोच होनी चाहिए जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि scikit-learn जो होती है इट शुड वर्क विद द numpy एरेज ऑल्सो। numpy के साथ वर्क करती है, क्योंकि ये मैथमेटिकल पार्ट है, वो भी एरेज के साथ ही वर्क करता है। ये देखिए, ये इस तरीके की प्लॉटिंग होती है हमारी जो सी बॉन्ड में हमारे आएगी। ये नीचे वाला है ना, ये कोरिलेशन प्लॉट है। अब कोरिलेशन प्लॉट में आप अगर साइड में एक बार देखेंगे तो उसमें हमारी वैल्यूज लिखी हैं। जो हमने कोरिलेशन क्या बताया था, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। अब वो बाई वेरिएट भी हो सकता है, मल्टी वेरिएट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें अब मैं इन्हीं वाली सेल्स के अंदर वैल्यू फिक्स कर दूंगा, तो और अच्छा हमारा रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो ये कलर्स हैं, अब आप अगर बार पे देख रहे हो कि यू कैन विजुअलाइज इट, वो बार पे जो कलर्स है वो वैल्यू की रेंज बता रहे हैं। दे आर टेलिंग मी द रेंज अबाउट दैट। तो यहाँ पर अब इसी के सेंटर पे मैं इसी हर एक ब्लॉक में एक वैल्यू इंसर्ट करा दूंगा, जो उसका एक गुड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा इस चीज का बेनिफिट होता है। ये हमारा मैट सी बॉन्ड्स के थ्रू आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज, ये मशीन लर्निंग को बहुत बहुत इजीली हैंडल कर सकता है, बहुत इजीली। इसके लिए हमें कोई भी ऐसी चीज की जरूरत नहीं होती है कि हम ये अकेले ही अपने आप में, एक तरीके से अगर मैं कहूँ मशीन लर्निंग का गॉडफादर पाइथन पे कहा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथन। आप जब भी कोई मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम लगाएंगे तो आपको पहले scikit-learn मेंशन करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग विद द, जैसे रेग्रेशन कर रहे हैं या लॉजिस्टिक कर रहे हैं या क्लस्टरिंग कर रहे हैं या टाइम सीरीज कर रहे हैं, वो आप मेंशन करोगे तो ये वहां से अपने आप ऑटोमेटिक रन होनी शुरू हो जाएगा। numpy, scikit, matplot, ये सब एक एफिशिएंट लाइब्रेरीज हैं जो डेटा एनालिसिस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। Even in the supervised learning, I already told you there are some additional attribute we want to predict it. We can use for the scikit-learn for the supervised learning, just for the classification, just for the clustering, regression, all these things. Classification, you are aware with the labeled data. So labeled data is nothing, it is a categorical data. And the regression is the numerical data. So, and clustering is the grouping of the similar object, homogeneous object. Clustering is that. So scikit-learn can handle very easily all these things. So you must be aware with these terminologies, with these libraries. It play the wider role in these things. Then the another library is TensorFlow. It is the Google open source library, which helpful for the doctors detection, respiratory detection, malaria detection, each and everything, cancers, TB detection. It's work on the images and all these things, the machine learning and AI. Evenly, if you saw the last point, enabling medical staff to prescribe the right antibiotic. You can see there's lots of things. It's work with the Keras and all these things. So we will not avoid anything which is related with these. So these are the important libraries which we are used regular days, regular data set working, regular things on that.
So you must be aware some basic points or basic concept about these libraries. So guys, please Google team created this TensorFlow is designed in the Python programming language. It is easy to understand for the framework. So it is fascinating for the intelligent artificial intelligence, all these things to develop and research. So so today we have this much. Now we start some practical. I will show you. I use the pandas to develop to import the data set. So I will start on that. I will show you these data set. See this. See this data set. See the headers, MPG, slender, displacement. Is screen is clearly visualized to everyone? क्या सबको स्क्रीन Yes, क्लियरली दिखाई दे रही है और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Everything is clear. Okay, thank you so much. This is Jupyter. I'm just loading the three data set, empty, air and lungs. The main is empty cars, air quality, lung capacity. So I just transform into the import by the another name. I don't want to use these long name. I just import the data set. This is the Jupyter. अब मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था एक्सेल में क्या होता है, हमारे हेडर्स जो होते हैं वो भी एक ही फॉन्ट साइज के होते हैं, जो हमारे सेल्स वैल्यू द सेल्स में जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं. अब यू कैन सी इन दिस, जो हमारे हेडर्स हैं इसके अंदर, दे आर क्लियरली बोल्ड विद द ब्लैकिश, उनमें और सेल्स रो में हमारा डिफरेंस दिखाई दे रहा है. वी कैन इजिली अंडरस्टैंड इट कि हमारे हेडर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. इन पाइथन द स्टार्टिंग इज ऑलवेज फ्रॉम द जीरो. इन आर द स्टार्टिंग the starting point is 1. We can starting from the number 1, but in Python we can starting from the 0. अब आप देख सकते हो इसके अंदर मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं. अगर मेरे पास ये तो गिने चुने वेरिएबल्स हैं, लिमिटेड वेरिएबल्स, अगर मुझे और ज्यादा वेरिएबल्स मिलते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूं कि हमें पहले बेसिक इंफॉर्मेशन डेटा के बारे में कैसे कैप्चर नहीं करनी है. अब जैसे सपोज करिए मैं एमटी पे वर्क कर रहा हूं, तो मैंने एमटी डॉट शेप लिख दिया. ठीक है, और मैंने आपको शेप बताया था, शेप इज नथिंग, इट इज द डायमेंशन. और डायमेंशन क्या होता है, रो इनटू कॉलम. तो मेरे पास कितनी है, 32 रोज 11 कॉलम्स. ठीक है, ये मेरी डायमेंशन आ गई. अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल्स. अब आप देखकर बताओगे, मैं कहता हूं मुझे देख के मत बताओ, मैंने अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन कर लिया तो मुझे वैसे ही बताओ आप. ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, कॉलम्स लिख दिया मैंने. ठीक है, मैंने इसको रन कराया तो मेरे पास क्या आ गया, एमपीजी, सिलेंडर, डिस्प्लेसमेंट, एचपी, ड्राफ्ट, वेट, क्यूसैक, वीएस, एएम, गेयर, कार्बोरेटर, ऑल दीज थिंग्स इज कम इन फ्रंट ऑफ मी. तो मैंने अभी कुछ नहीं किया, अभी तो ये तो स्मॉल डेटा सेट, मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट होगा तब भी मैं ऐसी सिंटैक्स से उस चीज को फाइंड आउट कर सकता हूं. तो उसने मुझे क्या किया, नेम ऑफ द कॉलम्स. ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं एक बार जिससे आपको थोड़ा सा याद रहा. मैं आपके साथ ये वाली शीट भी शेयर कर दूंगा, मैं सर को भेज दूंगा तो सर आपके साथ शेयर कर लेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, अब मैंने आपको वेरिएबल्स टाइप पढ़ाए थे. ठीक है, अगर किसी को पता है तो वो चैट बॉक्स में एक बार डाल दे, सो दैट मुझे पता चल जाए कि सबको पता है कि नहीं है, या मुझे फिर से बताने हैं. क्योंकि हमारा डेटा सेट इन्हीं के बेस पे डिफाइन होता है कि अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल मींस आउटपुट वेरिएबल और इनपुट. अगर मेरा आउटपुट वेरिएबल अगर कैटेगरीज में जाना है तो मुझे कौन सी एल्गोरिथम यूज करनी है, अगर न्यूमेरिक में जाना है तो कौन सी करनी है, अगर इमेजेस में जाना है तो कौन सा करना है. ठीक है, अब मैं आपको उसमें दिखाता हूं कि मेरा जिसमें हम बोलते हैं वेरिएबल्स, बट यहाँ पर आके नेम हो जाता है डी टाइप्स. डी टाइप्स मतलब टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स. ठीक है, अब आप देखो फ्लोट का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द फ्लोट, इंटीजर्स और कंटिन्यूअस. यहां पर फ्लोट की अगर मैं वैल्यू को देखूं
तो किस में जा रही हैं, एमपीजी की वैल्यूज फ्लोट में जा रही है, क्या है, पॉइंट्स में। अब पॉइंट्स वाला क्या होता है, कंटिन्यूअस, और इसमें मुझे क्या मिला है, फ्लोट। फ्लोट इज द अनदर नेम ऑफ द कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। सिलेंडर क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है यहाँ पर, जो नंबर्स हैं विदाउट डेसिमल्स। तो इंटीजर्स को मैं क्या कह सकता हूं, दूसरा नाम क्या है इसका, डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यूज हो गई, इंटीजर्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास दो टाइप के, लेकिन ओवरऑल डेटा सेट कैसा बिहेव कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर मुझे क्या शो हो रहा है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये हम देखेंगे बाद में क्या डिसाइड हमको करना है। ठीक है, अब अगर मुझे स्टार्टिंग के कुछ ऑब्जर्वेशंस चाहिए, जैसे सपोज करो मैंने कहा यार मेरे पास 32,000 रोज है मतलब ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, डी टाइप जो है मुझे बताते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, ये मेरा वेरिएबल्स बता रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे स्टार्टिंग के सपोज करो 5 या 6 ऑब्जर्वेशंस चाहिए। ठीक है, मैं नहीं चाह रहा पूरे डेटा पे, क्योंकि मैं तो थोड़ा बहुत सैंपल लिख के चलना चाहूंगा, मैं नहीं चाह रहा, मेरे पे इतना टाइम भी नहीं है और ना मुझे देखना, मैं बाद में इसको प्रिडिक्शन में लूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एम्प्टी डॉट हेड। हेड मतलब हमारा बॉडी का सबसे टॉप पार्ट, तो मुझे टॉप वाला पार्ट ये शो कर दे। तो यहाँ पर क्या आ गया, अब आप देखिएगा मुझे क्या दिखा दिया इसने, ओ सॉरी मैंने इसमें नंबर मेंशन नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट ये 5 देता है स्टार्टिंग के। अगर मैं इसके अंदर 10 डाल दूंगा तो ये मुझे 10 शो कर देगा। यू कैन मेंशन द नंबर इफ यू वांट टू सी दैट क्वांटिटी ऑफ द नंबर। ठीक है, अब यही अगर मैं इसमें टेल डाल दूं, टेल मतलब सबसे लोएस्ट पार्ट, तो मुझे ये बॉटम से दिखाना शुरू करेगा, जैसे एम्प्टी डॉट टेल। ठीक है, टेल में बाय डिफॉल्ट ये भी मुझे 5 ही दिखाएगा। सी दिस, लास्ट के इसने मुझे 5 दिखा दिए। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर 10 डाल दूं, तो क्या हो गया, यहाँ पर आके वो चीज 10 में आ गई, लास्ट के 10 ऑब्जर्वेशन इसने मुझे शो कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको कल कोरिलेशन पढ़ाया था, मुझे लगता है सभी को याद होगा, अब नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। कोरिलेशन बताता है मुझे रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है, अब मुझे इसमें रिलेशनशिप देखना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोरिलेशन। सबसे बड़ी बात है, आप जब भी कोई स्टेटमेंट लिखेंगे आप हैशटैग लगा के लिखेंगे। आप जितने ज्यादा हैशटैग लगाएंगे आपका साइज उतना छोटा होता चलेगा, फॉन्ट साइज। ठीक है, यहाँ पर मैं आग मार्क डाउन में भी कर सकता हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में कैसे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मेरा डेटा सेट किस नाम से इंपोर्ट हुआ है, एम्प्टी से। ठीक है, बाय द नेम ऑफ द एम्प्टी आई मेंशन द एम्प्टी एंड कोरिलेशन इज कॉर थीसिस, और यहाँ पर मैंने इसको रन कर दिया। अब मेरे पास देखिए सबकी कोरिलेशन वैल्यूज आ गई हैं, कैसे ये मैं आपको बताता हूँ, चेक करना। अब देखिए पहला रो पहली कॉलम क्या है, एमपीजी एमपीजी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एमपीजी एमपीजी कितना है आपस में, हमेशा रिलेशनशिप ऑलवेज 1। ठीक है, अब एमपीजी कॉलम देखिए, सिलेंडर देखिए रो वाला, तो कितना हुआ, -0.85। दिस माइनस आ रहा है, दिस इंडिकेट इट इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो है लेकिन इनवर्सली है। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर मेरा ब्लू साइन है -0.85। अब यही अगर आप क्रॉस डायगोनली जाएंगे तो मेरा यहाँ भी वही चीज आ रही है, क्योंकि आप एमपीजी सिलेंडर करें या सिलेंडर एमपीजी करें वैल्यू आनी ही सेम है। ठीक है, यही मैं एमपीजी डिस्प्लेसमेंट के साथ जाता हूँ, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। इफ somebody asks you for the business purpose what is the minimum correlation values required, so it's totally depend on you, but for the business purpose if you want to see the good correlation you will at least see the 0.4 sorry 0.5 0.6 0.7 is totally depend on you what should you take the cutoff value for the correlation। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का कितना है -0.847 और ऊपर कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट एमपीजी का, थर्ड कॉलम में फर्स्ट रो में देखिए ये भी वही चीज आ रही है। तो यहाँ पर हमने वो सारी चीजें क्रॉस डायगोनली अगर हम जाएंगे तो वो सारी चीजें मैच करती हुई चलेंगी। ठीक है, अब मैंने आपको कल बताया था 5 नंबर समरी। ठीक है, जिससे हमने क्वार्टाइल्स क्वांटाइल्स पे बात करी थी।
तो मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि वो कैसे निकालते हैं। उसके लिए भी मुझे कोई हार्ड एंड फास्ट टूल, कोई मुझे फॉर्मूला या कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए। 5 नंबर समरी कह लीजिए या इंटर क्वार्टाइल रेंज कह लीजिए। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, empty.describe। ठीक है, डिस्क्राइब की स्पेलिंग गलत हो गई, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब। ठीक है, सी दिस, मेरे पास पूरा डिस्क्रिप्शन आ चुका है। काउंट्स is nothing, it gave the information about the number of the rows। अगर मेरे पास कोई भी मिसिंग वैल्यू होगी, मिसिंग सेल होगा, तो वो भी मुझे इंडिकेशन हो जाएगा, वो मैं आपको दूसरे में। ठीक है, मेरे पास एक डेटा सेट और है, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो, जिससे आप क्लियर हो जाओगे। एक मैंने लंग के नाम से भी शायद कर रखा है, लंग पे तो नहीं है, एयर पे होगा। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, एयर डॉट डिस्क्राइब। गाइस सी दिस, एक कॉलम में वैल्यूज है 116, एक में 146, एक में 153, एक में 153। इसका मतलब यहाँ पर आप देखो ओजोन और सोलर रेडिएशन। ठीक है, मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ, क्या कहते हैं उसको, इसका हम कहेंगे शेप दिखाता हूँ मैं आपको इसकी। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसकी शेप लिखो एक बार, एयर डॉट शेप। ठीक है, देखो 153 है इसके पास, तो 153 इसके जो रोज हैं, अब यहाँ पर आके वो 116 हो गए। इसका मतलब कितने मिसिंग है, 37। तो दिस इज द मिसिंग वैल्यूज। अब आपसे कोई पूछेगा यार ये वेरी क्यों कर रहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी मिसिंग सेल्स की वैल्यूज होंगी, कभी सेल रिमूव नहीं होगा। अगर सेल रिमूव होगा तो मेरे वो डेटा को अनबैलेंस कर देगा, पूरी रो डिडक्ट होगी, वो पूरी रो। ठीक है, आप ये देख लो, फिर एक काम करो, एक मिनट, प्रिंट ऑफ एयर, सी दिस, जैसे एन ए आ रहे हैं इन दोनों में, तो ये क्या होगा, ये पूरी रो वाला कॉलम चला जाएगा मेरे पास से। ठीक है, अब मैं आपको एसवीएसी दिखा देता हूँ। देख रहे हैं आप, पूरा चला गया है मेरे पास, ये पूरी चीजें चली जाएंगी। मैंने दो चीज से शो किया एयर का डेटा सेट, एक प्रिंट से, एक किससे, डायरेक्ट बाय द नेम थ्रू वी कैन इंपोर्ट इट, द नेम वी कैन इंपोर्ट इट, बाय द नेम व्हाट वी कैन इंपोर्ट इट इज एयर एयर एयर। तो गाइज यहाँ पर आपको डिस्क्राइब फंक्शन में वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके लिए यूजफुल रोल प्ले करेगी। अब देखो यहाँ पर मीन 42 है, ठीक है, 185, 8, 9, देखिए मिनिमम नंबर आ गया, मीन आ गया, क्वार्टाइल्स आ गए आपके, फर्स्ट 25, सेकंड 30, 50 सॉरी, मतलब मीडियन आ गया। ठीक है, और आपका 75 थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम इज द फोर्थ क्वार्टाइल। ठीक है, यही हमारा ऊपर माइलेज वाली गाड़ी में आया, माइलेज वाले डेटा सेट में आया है, यहाँ पर भी वही चीज आ रही है। ठीक है, अब इसमें अगर मुझे मीन अलग से भी निकालना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि सेपरेटली हाउ वी फाइंड आउट द मीन फॉर ए पर्टिकुलर कॉलम। डेटा सेट जो मैंने मेजर जिस नाम से मैंने इंपोर्ट किया है, अब जिसके अंदर मुझे वेरिएबल निकलना है, विच आई फॉर दिस आई यूज द स्क्वायर ब्रैकेट्स, बिकॉज for the always square brackets, if you need to do the sum setting or indexing, you use the always square brackets in every tool, not in the every tool, in the C. I don't aware with the Java and all these things, with the R, Python, Tableau, and in this thing C language. ठीक है, see this 20.9, if we check it from the above scenarios, see this mean is 20.9, see this value 20.09, we can also find out the separate mean। अब मुझे ये चेक करना है कि नल वैल्यूज किस में है, नंबर ऑफ काउंट चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने empty डॉट टू चेक द नल वैल्यूज या मिसिंग वैल्यूज, ठीक है, empty डॉट
इज नल, ठीक है, डॉट सम, सी दिस 0 0, मतलब किसी में कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है, और यहाँ पर भी सब में 32 32 आ रहा है, सी दिस 32 32, और जो उसकी शेप थी वो भी 32 ही, 32 इंटू 11 बता रहा था, ठीक है। अब यही मैं आपका यहाँ पर आके मैं इसको एयर में कर देता हूँ, अब देखिएगा यहाँ पर मुझे काउंट्स दिखा देगा फिर। ओजोन में कितनी मिसिंग है 37, सोलर में कितनी है 7, ठीक है। अब ऊपर जाते हैं हम लोग, वी गो फॉर द अपर साइड। अब आप देखो यहाँ पर 116 है, 146 तो कितना बचा यहाँ पर 37, और यहाँ पर कितना बचा 153 माइनस 146 7, तो नंबर ऑफ काउंट्स भी इसने मुझे यहाँ पर नीचे इंडिकेट कर दिए। दिस इज द मेथड, ठीक है। अब सपोज करिए मुझे एन वैल्यूज ड्रॉप करनी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिमूव मिसिंग वैल्यूज। अब मैं नया डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, देखिएगा अब मैं क्या डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, मैं अब ए के नाम से बना, जो मैं आपको डेटा फ्रेम बताया था, डेटा फ्रेम इज नथिंग द सबसेट ऑफ द मेन डेटा सेट और और पॉपुलेशन, ठीक है गाइज। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कैसे ड्रॉप करते हैं। तो मेरा मेन किस में था, एयर क्वालिटी में था, मैंने एयर मेंशन किया, एयर के बाद मैंने ड्रॉप एनए लिख दिया, ठीक है। अब आप चेक करना इस पे, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको ए का शेप दिखाता हूँ, ए डॉट शेप, ठीक है, ये देखिएगा कितना हो गया 111/6। अब मैं इसका अगर ए डॉट डिस्क्राइब फंक्शन लगाऊं, सी दिस, अब कितना हो गया 111111। अब आप देख रहे हैं सब रो इक्वल आ गए, इसका मेरा डेटा अब पूरा क्लीन पूरा नहीं हुआ, क्लीन होना स्टार्ट हो गया। तो अगर मैं ए को यहाँ पर लिखता हूँ तो जस्ट सी दिस, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर फोर्थ हट गया, 4 नंबर 4 और 5 हट गए, पूरी रो हटती है, कभी सेल नहीं हटता। समबडी आस्क यू तो आप बताओगे उसको सर अदरवाइज माय डेटा विल बी अनबैलेंस। पता है किसी में 153 रोज हैं, किसी में 146 रोज हैं, किसी में 111 रोज, तो क्या हुआ डेटा में प्रेडिक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अगर मैं इसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहता हूँ अपने एमपीजी वाले का, तो सी दिस, मैं क्या करूंगा, अपना डेटा सेट का नाम मेन और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूँ फिर से, और मुझे पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना है उस मेन डेटा फ्रेम से, और मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉट एसटीडी, ठीक है, मैंने इसको रन करा दिया। तो कितना आ गया 6.269, ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है। अगर मैं कोई भी 2 कॉलम का कोरिलेशन चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि पूरे डेटा का है, मैं कोई पर्टिकुलर में 2 कॉलम का मेरे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, आई जस्ट फाइंड आउट द 2 इंपॉर्टेंट कॉलम जो मेरा फॉलो करे, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर वही चीज, सेम चीज, empty डॉट एमपीजी, अगेन सब सेटिंग, देन अगेन डॉट कोरिलेशन। अब उसको इंडिकेट, हम कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस सॉरी कर ब्रैकेट, फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर वेट, और फिर हम इसको रन करा देंगे। क्या आ गया देखिए, माइनस वेट और एमपीजी का कितना है -0.867, ठीक है। हम ऊपर चलते हैं, एक बार कोरिलेशन मैट टेबल देखते हैं जहां पर हमने वो निकाला था। अब आप देखिए किसका निकाला था हमने, एमपीजी और वेट का। अब देखिए आप एमपीजी और वेट ले लीजिए, कितना आ रहा है, सॉरी ये तो वो है 5 नंबर समरी है, ये देखिए आप एमपीजी और वेट का कितना आ रहा है -0.86, सी दिस, ये वैल्यू। अब मैं इसी के डायगोनली जाता हूँ, देखिएगा इसी के डायगोनली तो कितनी आ गई, आप एमपीजी वेट लें या वेट एमपीजी लें, दोनों वैल्यू सेम है, क्लियर है गाइस। अब यहाँ पर आके आप देखिए, यहाँ पर आके ये चीज शो हो गई मुझे, ठीक है। अब मैं दूसरी लाइब्रेरी यूज करता हूँ जिसका मैंने नाम बताया था आपको, मैटप्लॉट। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट मैटप्लॉट lib SPLT, ठीक है। आप शॉर्टकट की शिफ्ट रन दबाइए, एंटर शिफ्ट सॉरी, नहीं तो हम यहाँ से रन कर सकते हैं,
ठीक है, अब आप देखिएगा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, empty again mpg dot plot dot list। ठीक है, एरर क्यों आ गया, प्लॉट है, सॉरी प्लॉट। ये लेता है 10-20 सेकंड लेता है ये। चलो जब तक ये हो रहा है तब तक हम आगे सिंटेक्स रन कराते हैं। ये उसका वेट करते हैं। एक मिनट शायद ये कंप्लीट था। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा आ गया। अब यही अगर मैं इसको बॉक्स प्लॉट लिख दूं, empty और mpg डॉट प्लॉट डॉट बॉक्स, तो मैं आपको बॉक्स प्लॉट बता रहा था। सी दिस गाइस, देख लीजिए ये जो पॉइंट आ रहा है ये आउटलायर का काम कर रहा है, आपके सामने ही है ये, आपके, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, टोटली इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, ये मेरा आउटलायर है विच बिहेव एबनॉर्मल। अब आप देख रहे हैं ये पूरी क्लास से बाहर जा रहा है कि ये मेरा आउटलायर है। ठीक है, आई होप सो ये यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, अब मैं आगे आपको एक और डेटा फ्रेम बनाना सिखाता हूँ आई लॉग से, जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा इस चीज को लेके। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा प्लॉटिंग बता, चलो पहले आपको यही बता देता हूँ जिससे आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए एक, सपोज करो मैंने एक नया डेटा फ्रेम बनाया, empty इक्वल्स टू, मुझे कुछ ही पैरामीटर्स चाहिए, जैसे मेन मेरा empty है, यहाँ पर मैंने डॉट आई लॉग लिख दिया। ठीक है, और मैंने इसमें लिख दिया 2:4, 3:9। ठीक है, मैंने इसको रन करा दिया और यहाँ पर मैंने चलो मैं इसी में ऊपर लिख देता हूँ empty1। अब आप देखो 2 से 3 तक रोज आ गई, रो इनटू कॉलम होता है, और कॉलम आ गए मेरे 3 से 9 तक। ठीक है गाइस, अब आप देख रहे हैं ये डेटा फ्रेम कहलाता है, मतलब empty1 इज वर्किंग एज ए ना डेटा फ्रेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पर numpy इंस्टॉल करता हूँ। चलो पहले मैं आपको कुछ स्कैटर प्लॉट भी दिखाता हूँ, एक दो, इससे थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा। empty scatter plot, scatter plot, empty
नॉट स्कैटर, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया MPG कॉमा वेट लिख देता हूँ, चलो वेट का ही किया था, ठीक है। देखिए आप उसमें कितनी वैल्यू थी, माइनस की थी ना, माइनस मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आप ये देखो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है MPG और वेट। Guys, see this. This is the tool which can represent easily with the magnetic power of visualization graphs, even the solve the statistics within the seconds, ठीक है। बस ये इसका बेनिफिट होता है जिसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका दूसरा ही फॉर्मेट आपको दिखाऊं, लेट्स ट्राई, मैं भी ट्राई कर लेता हूं जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है। एम्प्टी डेटा सेट, फिर उसमें आ गया मेरा MPG। गाइज मैं एक ही चीज आपसे कहूंगा, शेयर माय एक्सपीरियंस, नेवर ट्राई टू मगिंग द कोडिंग, जस्ट डू प्रैक्टिसिंग, ओनली प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। अदरवाइज अगर आप पैरट्स बनने की कोशिश करोगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्लीज पैरट्स मत बनिएगा कि आप सोचे मैं इसको रट लूं उसको रट लूं, नहीं, कभी मत करिएगा। ये सब चीजें आपके लिए ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। सीधे मैंने केवल ओ यहाँ पर शेप के लिए लिखा, देखिए अब बबल्स के साइज जो है वो लार्जर हो गए, वो बाय डिफॉल्ट था, ये लार्जर हो गए, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको मैं एक बार कलर भी डाल के देख लूँ, शायद कलर से भी हो जाए कुछ। रेड होता ही नहीं ले रहा, रेड नहीं ले रहा, चलो आगे देखता हूँ इसको मैं, ठीक है। कॉल इज इक्वल्स टू द रेड, नहीं लेना, या मैं एक काम करूँ, इसको कलर इक्वल्स टू रेड देखूं डाल के, नहीं लेना, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा क्या है, चलो कोई नहीं, आएगा तो बता दूंगा। गाइस आप इस चीज के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिएगा कि कोई आपसे कोडिंग पूछेगा, नो वन कैन आस्क यू द कोडिंग, जो पूछेगा वो बेवकूफ ही होगा कोई। बहुत रियर केस में आउट ऑफ 100 एक से दो ही ऑर्गेनाइजेशन पूछती हैं, otherwise no one can ask you about the codings and all these things, so be focused only on the concepts, on these things, don't need to worried about it कि वो हमसे क्या पूछेगा क्या करेगा, ये सब नहीं, don't need to worry it, ठीक है। अब मैं एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ, एक और खुद से क्रिएट करता हूँ by using import the numpy, ठीक है। जैसे मैंने नाम डाला डेटा इक्वल्स टू प्रेसेस, और मैंने इसको लिखा वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल्स टू नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट 23,34,56,21, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर डाला हाइट, लेंथ डाली, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगाया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया 2,6,9,3, ठीक है, कॉमा लगाया। फिर मैंने यहाँ पर इसका मास डाल देता हूँ, या हाइट डालता हूँ, हाइट, ठीक है। फिर मैं आपका 5,6,7,8 कर दिया मैंने, ठीक है। इसको रन करा देता हूँ, इनवैलिड सिंटैक्स वाई, सॉरी मैंने इसको, क्या गाइस याद रखिएगा हमेशा कैरेक्टर्स हमेशा सिंगल कॉमा या इन्वर्टेड कॉमास में ही आते हैं। अब भी एरर्स दिखा रहा है, क्यों 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 क्यों, ओके यहाँ पर डबल कॉमा है,
ठीक है, करिए रन। अब मैं इसको एक डेटा फ्रेम फिर से मैंने डी बनाया, उसमें मैंने लिखा pd डॉट डेटा डॉट फ्रेम टू द डेटा। ठीक है, मैंने यहाँ पर डी को रन कराया, सी दिस, मेरे पास ये चीज आ गई। ठीक है, अब मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है। ठीक है, कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। एडिंग न्यू रो। ठीक है, मैंने D2 लिखा, उसको D मतलब पहले वाला जो डेटा फ्रेम है, और मैंने वही वेरिएबल्स के नाम अपेंड, यहाँ पर अपेंड यूज हो जाएगा। अपेंड इज यूज टू एडिंग द न्यू रोज और ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर वॉल्यूम लिखा, जो ऊपर वेरिएबल्स हैं उन्हीं में मैंने एक नई वैल्यू इंसर्ट करा रहा हूँ, जिसमें मैंने लिख दिया 29। इसमें मैंने कॉमा लगाया, फिर इसके अंदर मैंने लेंथ लिखा, LEGST लेंथ। अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, वो पहले वाले से मैच नहीं करेगा, देन इम्पॉसिबल कि वो आपको फिर एरर ना शो करे, वो डेफिनेटली आपको एरर शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आपका 15 डाल देता हूँ। ठीक है, रन करा दिया। देखिए अब आप एरर क्या आ रहा है इसमें, ये मुझे दिखा रहा है एरर। ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये आ रहा है time the hide append new rows adding। ओके, तो यहाँ पर टेम्पररी इनपुट। ठीक है, यहाँ पर मैं इग्नोर कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पर कॉमा इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, मैंने इसको रन करा दिया। यस, रन कर गया। अब देखिए यहाँ पर रो हो गया। ठीक है, और यही प्रोसीजर अब मैंने रो कराया है। अब मैं आपको कॉलम ऐड करके दिखाता हूँ, जिससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि रो भी ऐड हो सकती है, कॉलम भी ऐड हो सकती है। जैसे हम प्रिडिक्शन करेंगे, मैं इसके बाद एक मॉडल बना देता हूँ आपको रेग्रेशन का, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कॉलम भी कैसे ऐड कर सकते हैं। मेरा दिखाने का मोटिव ये है कि आप कनेक्ट कर पाओ थोड़ा सा। मेरा मेन डेटा फ्रेम A2 हो गया। ठीक है, अब मैं नया कॉलम ला रहा हूँ इसमें। आप ये समझिए लेंथ वेट हाइट, वेट ले आता हूँ, VIGST वेट ले आता हूँ। ठीक है, टोटल वैल्यूज कितनी है मेरी, यहाँ पर 5 है। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ 10, 20, 30, 40। अब आप देखना, एक चीज देखना, यहाँ पर आप एरर्स आ रहा है, एरर्स को रीड करना सीख लीजिए, देन यू कैन इजीली हैंडलिंग द टूल। क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ वैल्यूज डज नॉट मैच द लेंथ ऑफ इंडेक्स। मतलब जो वैल्यूज मेरे पास मेन डेटा फ्रेम में D2, वो वैल्यू इंडेक्स मैच नहीं कर, मतलब एक वैल्यू कम है। 5 3 50 डाल देते हैं। Now we can run it and we enter D2. Now we can run it. देखिए मेरे पास एक कॉलम ऐड हो गया। ठीक है गाइस, ये चीज क्लियर हो गई है आपको। ठीक है, अब हम मॉडल बना देते हैं रिग्रेशन का, क्योंकि हमारा टाइम भी ओवर होता आ रहा है। तो मैं आपको एक रिग्रेशन मॉडल दिखाता हूँ। याली लाइब्रेरी मैंने आपको बताई नहीं थी, बट अब मैं आपको बता रहा हूँ। स्टैट्स मॉडल, स्टैट्स मॉडल डॉट फॉर्मूला डॉट API, ये आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। मॉडल्स डॉट फॉर्मूला डॉट API एज SM API। ठीक है, इंपोर्ट हो गई। अब मैं एक नया मॉडल बना रहा हूँ, सपोज करो प्रतीक के नाम से ही बना देता हूँ, वो ज्यादा ना ही कैप्चरिंग होगा आपके लिए। SM API, जिसको रेग्रेशन नहीं पता है वो मैं कल पढ़ाऊंगा ही, कल का मेरा टॉपिक रेग्रेशन पे भी है। ठीक है, मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। रेग्रेशन की मोर देन 100% रेग्रेशन एल्गोरिथम यूज होती ही है हर जगह, शायद वो कितनी भी एडवांस क्यों ना हो एल्गोरिथम। OLS मतलब ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, इसका मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा कल। ठीक है, OLS का फॉर्मूला गाइस, एक सिंटेक्स
मतलब एक चीज के निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्स फॉर्मुलेट होते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पसंद करते हैं। लेकिन जो भी मैंने इजी लगता है वो मैं करता परफॉर्म करता हूँ, क्योंकि कुछ जो हार्ड कोडर होते हैं वो उस चीज को बड़ा कॉम्प्लिकेटली प्रेजेंट करते हैं, जिससे सामने वाले को लगे यार मैं तो बहुत बड़ा कोडर है या फिर ये बहुत बड़ा कोडर है। नहीं, मैं बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ अपनी साइड से, कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इस तरीके से प्रेजेंट करूँ जिससे आपको कोडिंग कुछ नहीं है, और बाकी कोडिंग कुछ भी नहीं है, केवल प्रैक्टिस और लॉन्ग टाइम सेटिंग चाहिए होती है। वो तो डिपेंड करता है कि कौन कैसे प्रेजेंट कर रहा है। आप चाहें तो वही चीज 10 तरीके से इस मॉडल को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको दिखाया था वेट का और एमपीजी का, शायद मैंने ऊपर जो स्कैटर प्लॉट बनाया है वो वेट का ही है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ जिससे इजी हो जाएगा। एमपीजी और वेट का, ठीक है, मैं इन्हीं के बीच में मॉडल बना रहा हूँ। ठीक है, ये रेग्रेशन का साइन है। ठीक है, रेग्रेशन नहीं बोलेंगे, रेग्रेस बोलेंगे। और मेरा मेन डेटा कौन सा है, जो मैंने एमटी के नाम से इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो मैंने डेटा इक्वल टू एमटी लिख दिया, कॉमा फिट लिख दिया। फिट मतलब मैं अपने मॉडल को फिट करा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं रन कराता हूँ इसको, प्रे करिएगा रन कर जाए बस। वाह, रन करिएगा, आपकी ब्लेसिंग्स काम आ गई। अब मेरा प्रतीक के नाम से मॉडल था, प्रतीक डॉट समरी। अब मैं इसकी समरी निकाल रहा हूँ। ठीक है, मुझे मॉडल की समरी चाहिए। अब यहां पर स्टैटिस्टिक्स और कॉम्प्लिकेटेड होने जा रही है। ये देखिए अब आप, ये सारी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। वार्निंग मत जाइएगा, ये वार्निंग हर एक में शो होगा, इसमें कोई इसका इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं जाता हूं अपनी मॉडल की ओवरऑल एक्यूरेसी पे, तो आप देखिएगा आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर, ये देखिएगा 0.75, मतलब 75% मेरा मॉडल सही है। एडजस्टेड आर स्क्वायर और आर स्क्वायर लगभग सेम होता है, ये मैं आपको कल बताऊंगा ये क्या इंडिकेट करता है, पहले आप ये मॉडल देख लो। ठीक है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है, बट सारी नहीं पूछी जाती, जो पूछी जाती हैं और जिनका यूज होता है वो मैं आपको बताऊंगा। बट पहले आप ये मॉडल देख लीजिए एक बार। ठीक है, मतलब 75% मेरा। अब मुझे क्या प्रिडिक्ट करना है, अब आप इस मॉडल में देखिए एमपीजी जो मैंने मॉडल बनाया है। कोई मुझसे कहता है, सपोज करो मैं एक सिनेरियो लेके आ रहा हूं यहां पर, मुझसे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट कहता है, ध्रुव ध्रुव कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट जो सेल्स का है, वो मुझसे कहता है ध्रुव यार मेरी कंपनी, मेरी मारुति कार की सेल्स डाउन होती जा रही है, क्योंकि हुंडई ने और टोयोटा ने और वोक्सवैगन ने अपनी गाड़ी का माइलेज बढ़ा के बेच रही हैं और अच्छे रेट्स पे, वही रेट पे बेच रही हैं। जैसे एक टाइम पे नोकिया था, फिर सैमसंग ने कैप्चर किया मार्केट, फिर और ब्रांड्स आए, ओप्पो आए, रेडमी आया, लाव आया, जो भी आ सकता था, फिर आईफोन चल ही रहा है। तो वो क्या है, अब वो मुझसे कह रहा है कि ध्रुव मारुति की सेल्स डाउन हो रही है, क्या रीजन है। हमारे मॉडल भी रिनोवेट हो रहे हैं, हर चीजें हमारी एडवांस हो रही हैं, लेकिन ड्यू टू द माइलेज हमारी सेल्स अफेक्ट हो रही है, तो हमारा कोई यूज नहीं रह गया। फिर उसका कॉल मेरे पास आता है, मेरे पास से फिर फैक्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट का कॉल आता है कि ध्रुव यार थोड़ा बताओ, क्योंकि जो मेरे पास डेटा सेट है उसमें ओवरऑल वेरिएबल्स 11 है। आपको याद है शेप में कितने आए थे, 30 to 11। तो डेटा साइंटिस्ट का क्या काम होता है, अब वो यहाँ पर वो उस 11 वेरिएबल्स पे वर्क नहीं करेगा यार, 11 वेरिएबल्स पे तो लेबर वर्क कर ही रही है ना, वो तो मैनुअली काम करके मीटर चेक कर रही है। मैं क्या करूंगा, मैं उस वेरिएबल में से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स निकालूंगा जो उस पे एडवर्सली अफेक्ट डाल रही है। तो वो मैंने कोरिलेशन से पता लगा लिया, पहले वेट आ रहा है, वो मैं आगे आगे बताता चलूंगा कौन कौन से पैरामीटर्स मुझे लेते हुए चलने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास वेट आ रहा है, मतलब वेट एडवर्सली, अब जितना ज्यादा वेट होगा उतना माइलेज कम होगा। ये चीज तो आप भी जानते हो कि एवरीवन नोज द ड्राइविंग ऑफ स्कूटर, कार्स, बाइक एंड एवरीथिंग, जितना ट्रक ओवरलोडेड होगा उतना वेट कम होगा। तो मुझे पहले वेट पे फोकस करना है, सो दैट मेरी गाड़ी का वेट कम हो जाए। ठीक है, मैंने उसको एक दिया, ठीक है सर मैं काम करके आपको बताता हूँ हफ्ते 10 दिन में। उसने कहा ठीक है, क्योंकि मैं जो बताऊंगा वही फैक्ट्री वाले फॉलो करेंगे, वही मार्केटिंग टीम फॉलो करेगी, वही स्टैटिस्टिक, वही सेल्स टीम फॉलो करेगी, वही अदर टीम फॉलो करेगी। ठीक है, अब मैं यहां पर जाता हूं प्रिडिक्शन पे, कि अगर मैं वेट को फोकस में लेके चलता हूं, अगर मैं वेट को फोकस में लेके चलता हूं, तो मेरा मेरा प्रिडिक्शन क्या जाएगी विदाउट फोकसिंग रिमेनिंग 9 वेरिएबल्स। 9 क्यों रह गए, क्योंकि मैंने 2 निकाल दिए। एमपीजी प्रिडिक्शन में करना है, एमपीजी मेरा क्या है, आउटपुट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और वेट क्या है मेरा, इनपुट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है गाइस, तो अब मैं यहां पर प्रिडिक्शन पे जा रहा हूं। मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, नया फ्रेम बनाया, जिसका नाम मैंने दे दिया, सपोज करो ए दे दिया मैंने उसका। ठीक है,
और मैंने वो जो मॉडल मेरा बना है वो किस नाम से बनाया है, मैंने प्रतीक के नाम से, ठीक है, प्रतीक डॉट प्रिडिक्ट। अब मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि अगर मैं वेट को फोकस में लेके चलूंगा तो मेरा माइलेज कितना होना चाहिए। अब देखिएगा, मैंने इसको प्रिडिक्ट कर दिया, ए रन करा लिया। देखिए गाइस, मेरी यहाँ पर 32 की प्रिडिक्शन आ चुकी है, 32 के ऑब्जर्वेशंस की प्रिडिक्शन आ चुकी है। देखिएगा, चलो ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये 0 से काउंट स्टार्ट होता है, 0 से कितना है मेरा यहाँ पर 23, ठीक है, 23 प्रिडिक्शन आ रही है। अगर हम ऊपर जाते हैं तो कितना आ रहा है, ऊपर टेबल पे जाते हैं, एमपीजी कितना आ रहा है, एमपीजी 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 एमपीजी, ये रहा। देखिए गाइस, यहाँ पर आ रहा है 21। इन्होंने रिमेनिंग 10 वेरिएबल्स को प्रिडिक्ट करके कार तैयार करी, 21 आ रहा है। इसका मतलब वेट ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। और जैसे ही मैंने वेट को लिया, मैंने बाकी वेरिएबल्स को भी इंक्लूड नहीं किया है, तो मेरा कितना आ गया माइलेज 23। इसका मतलब मैंने माइलेज बढ़ा लिया। अब जब भी मेरी कार मैन्युफैक्चर होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार कुछ मत करो, सिंपल वेट पे फोकस करो पहले, उसके बाद हम चीज को और देखेंगे। अब आप देखिएगा, अब मैं इस वाली प्रेडिक्शन को अपने मेन कॉलम में ऐड करने जा रहा हूं। कैसे? मेन डेटा सेट क्या था मेरा, एम्प्टी था। नया कॉलम मैं प्रिडिक्ट के नाम से कर रहा हूं ऐड, कि अब जो मेरा नया कॉलम का नाम आएगा, इसलिए मैंने आपको अपेंड फंक्शन बताया था, इक्वल्स टू, अब मेरा जो पी आर है, मतलब जो मैंने ऊपर ए के नाम से डाला है, ठीक है, मतलब ए के नाम से मैंने प्रिडिक्शन करी थी, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए, क्योंकि वो उसमें ऐड करे। ठीक है, मैं इसको रन करा रहा हूँ, रन हो चुका है। अब मेरा आप एम्प्टी देखिएगा, वो ऐड होके आ जाएगा, आ गया ऐड होके। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 21, और मेरा ये 21 कार्बोरेटर तक प्रिडिक्शन में ले रहा है, सारे वेरिएबल्स इंक्लूड करें, मैंने केवल वेट को इंक्लूड किया अपने मॉडल में, तो मेरी प्रिडिक्शन कितनी आ गई 23.28। इसका मतलब मैं डायरेक्टली कॉल पे बोल सकता हूं कि पहले आप वेट पे फोकस करो। अभी मैं बता रहा हूं, मैं नेक्स्ट क्लास में और वेरिएबल्स इंक्लूड करके आपको एक मॉडल दिखा दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, हम और भी वेरिएबल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम चाहें तो सिलेंडर को भी प्रिडिक्शन में लेके कर सकते हैं, काफी सारी चीजें हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे रेग्रेशन लाइन बनानी है तो ठीक है, मैं आपको रेग्रेशन लाइन भी दिखा देता हूँ, इससे थोड़ा सा आपको और पता चले कि रेग्रेशन लाइन का। तो उसके लिए मैं पहले एक बार फिर से अपनी लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब इन्वॉल्व करता हूँ, प्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज plt। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मॉडुलस का साइन मैटप्लॉटलिब डॉट इनलाइन यूजेस एरर, क्यों भाई, ओ सॉरी, डॉट नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, plt.plot मेन डेटा सेट क्या है मेरा, empty है, empty मेरा पहले उसमें मैंने वेट लिया था ना, वेट आएगा मेरा इस पे एक्स एक्सेस वाला। गाइस लाइन इक्वेशन को याद कर लीजिएगा, y इक्वल्स टू mxc। y क्या है मेरा, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पर y मेरा डिपेंडेंट क्या हो गया मेरा mpg, और x क्या हो गया मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या हो गया वेट। ठीक है, कॉमा के बाद एम्प्टी, फिर से अगेन एम्प्टी। सिंपल ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने स्कैटर प्लॉट की कोडिंग यूज करी थी, मैं वही यूज कर रहा हूँ, कुछ और यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं पास सब सेटिंग कर रहा हूँ कौन कौन से वेरिएबल्स पिक करने हैं मुझे, जिन पे मैंने मॉडल बनाया है। तो यहाँ पर मैंने ओ लिख दिया। ठीक है, ये मैंने इसको रन कराया, फिर मैंने plt लिखा, plt.plot। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने लंग लिखा, फिर क्योंकि मैं तो वेट के थ्रू प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने फिर से वेट लिख दिया। फिर मैंने प्रतीक के नाम से ही किया था, प्रतीक कॉमा लाइन विड्थ, मुझे लाइन की विड्थ कितनी चाहिए, लाइन विड्थ
WIDJ, ठीक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है बट देख लेंगे, वो एरर्स आएगा तब, ठीक है। pyplot डॉट एक्स लेबल पे मुझे क्या डालना है वो भी मैं उसी को बताऊंगा, ये मुझे नहीं बताएगा, मैं इसको बताऊंगा। वेट डालना है, ठीक है। plt डॉट वाई लेवल पे मुझे क्या डालना है, वाई लेवल पे मुझे डालना है इसके अंदर mpg। आप देख रहे हैं कहीं कहीं मैं डबल कोड्स यूज कर रहा हूँ, कभी कभी सिंगल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन करेक्टर्स के साथ कोड होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर टाइटल डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ वेट, या फिर मैं इसके अंदर mpg वर्सेस वेट, और वेट प्लस mpg, बात एक ही है, ठीक है। उसको रन कराता हूँ, देखता हूँ क्या बन के आता है। अच्छा एरर दिखा रहा है मुझे, ये क्यों भाई, एरर क्यों दिखा रहा है ये मुझे, एक मिनट, जो मेरा PR है, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा सॉरी, PR नहीं आएगा क्योंकि मैंने ना यहाँ पर किसी और में लिया है, मैंने A में लिया है, सॉरी A आएगा यहाँ पर, A कहाँ गया, A आएगा यहाँ पर, PR नहीं आएगा। फिर आ रहा है एरर, ओ सॉरी 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 सॉरी, गाइस ये देखिए, आप नेगेटिव था, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गाइस मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, सॉरी मैं पूछना भूल गया, मेरी आवाज आ रही है क्लियर आप लोगों को? सॉरी सॉरी, मैं बिल्कुल पूछना भूल गया, आई एम रियली सॉरी। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप देख रहे रेग्रेशन लाइन आ चुकी है। अब रेग्रेशन लाइन को हम क्या बोलते हैं, बेस्ट फिटेड लाइन। और बेस्ट फिटेड लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब मेरे सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस कम हो जाता है उस लाइन से, तो उसको हम बेस्ट फिटेड लाइन बनाते हैं। ये हमारी बेस्ट फिटेड लाइन है जहां से हमारे सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस मिनिमम हो जाती है। और ये हमारी कौन सी एल्गोरिथम पे वर्क करता है, लीस्ट स्क्वायर एरर मेथड्स पे। लीस्ट स्क्वायर मतलब कि लीस्ट स्क्वायर का मतलब मिनिमाइज ऑफ एरर, जो सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस जो अपवर्ड है वो भी कम है और जो नीचे हैं वो भी कम है, और इनको हम ऐड करते हैं, इसको ऐड करके, तो जो हमारा, सपोज करो अगर हमारे नेगेटिव पॉइंट ज्यादा है तो नेगेटिव पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो हम उसको स्क्वायर्ड कर देते हैं जिससे वो डिस्टेंस पॉजिटिव में चला जाए। डिस्टेंस भी नेवर इन नेगेटिव, ऑलवेज इन द पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड है। आई होप सो आपको यही समझ में आया होगा थोड़ा, प्लीज लेट मी नो, ठीक है। थैंक यू सो मच, दिस इज ओवर फ्रॉम माय साइड। इफ एनीवन हैव क्वेरी देन आस्क मी, अदरवाइज वी विल stop this session right now. Thank you so much. Thank you guys to listen me very peacefully. बहुत प्यार से सुना आपने, thank you. प्लीज ये बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया, लेट मी नो। आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं इजीली, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट है या समझ में नहीं आया, क्लियर समझ में आया, सो दैट मैं कल की उसी हिसाब से फिर मैं प्रेजेंट करूंगा, उसी हिसाब से आपको नॉलेज डिलीवर करूंगा जो टॉपिक्स आ रहे हैं। ओके, डेटा एनालिटिक्स स्लाइड भेज दीजिए। और कोई एनी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्वेश्चंस आने दो सारे, जल्दी जल्दी बताते चलो। और कोई नहीं है कोई गाइस, और कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर हुआ ये तो बता दो यार। कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। अब इनका क्वेश्चंस आता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। या डेटा साइंस क्या होता है? डेटा साइंस होता है, मैंने आपको ये चीज पहले भी क्लियर करी थी, डेटा साइंस होता है हमारी एक साइंस, स्टैटिस्टिक्स को लगा के हमें प्रिडिक्शन करना। अब डेटा पे वो प्रिडिक्शन कैसी हो सकती है, जैसे हमने आपको दिखाई, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग हो सकती है, एनालाइजिंग हो सकती है, बट यहाँ पर एनालिसिस जो होती है वो हैंडल नहीं हो सकती।
ठीक है, यहाँ पर बिग डेटा आपका ईमेल्स हो सकता है, ट्वीट्स हो सकता है, आपका सोशल मीडिया हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो डेटा साइंस होता है, ये एक एनालिटिक्स को के साथ साथ डेटा साइंस को हैंडलिंग करता है इन द फॉर्म ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। अब वो कैसे, जैसे मैथमेटिक्स हो गई, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गई, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन हो गई, ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती हैं ये आपकी एक डेटा साइंस में आती हैं। एनालिटिक्स जो आती है उसका नाम मैंने आपको बताया था, इट इज द पार्ट ऑफ डेटा साइंस। वो सारी एल्गोरिथम जो एनालिटिक्स में आएंगी वो कवर नहीं होंगी जो मशीन लर्निंग पे हो जाती है। मशीन लर्निंग जो पूरा कवरेज होता है वो डेटा साइंस के ही थ्रू होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें रेग्रेशन आ जाएगा डेटा एनालिटिक्स में, लेकिन डेटा साइंस में मशीन लर्निंग भी आ जाएगी, एनालिटिक्स में नहीं आएगी मशीन लर्निंग। कीप रिमेंबर दिस वर्ड, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स नहीं आएंगी, क्लासिफिकेशंस नहीं आएगा, क्लस्टरिंग नहीं आएगा, एमएल नहीं आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना ही जान लो, यही बहुत है, ठीक है। क्योंकि डेटा साइंटिस्ट हमेशा मैथमेटिक्स, मशीन लर्निंग टेक्निक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा क्लीनिंग, डेटा प्रोसेस इंटरप्रिटेशन यूज करता है, ठीक है। ये बहुत इजी होता है और जो डेटा को ये सब करता है, ठीक है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। किसी कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो बता जाते हैं कि आज का टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सो दैट मेरे माइंड में फिर कुछ और नहीं चलता, वरना मैं कुछ और स्लाइड प्रेजेंट करता। शायद वो लोग इंटरेस्ट क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। कल मिलते हैं, ठीक है गाइस। गुड डे सर।